कौन से अभी भी कॉमन रोड ब्लॉक्स हैं जो टेस्टर्स अभी भी फेस करते हैं? I think lot of testers, like I speak to every day, they're in comfort. They were in comfort zone. They are not in comfort zone, but they were in comfort zone for quite some time. Comfort zone में थे. अब suddenly, because of the macroeconomic environment, pressure is increasing. तो आज भी हम नए चैप्टर लीडर्स को बताते हैं ना कि यार कि मीटअप स्टार्ट करना है, तो कहते लोग आएंगे, तो हम कहते हैं पहले मीटअप में 2 ही लोग आए थे इंडिया में, और आज इंडिया में बहुत लोग आते हैं. तो टेस्टिंग एंड में यू नो आपको क्या दिस लगता है कि मोर कौन देन सी सबसे अंडररेटेड स्किल है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता? द प्रॉब्लम इज नॉट जस्ट इंडिया स्पेसिफिक. दिस इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम व्हिच यू हैव टू सॉल्व. अगर मैं फ्री में मीटअप जा रहा हूँ तो मैं अपने दिन के 2 से 3 घंटे इस चीज़ को दूँ. क्या इज इट वर्थ इट? ए, दे फील सेफ. बी, दे फील हर्ड. एंड सी, they feel knowledgeable. So I think we will see an announcement in January, which for which we are working from quite some time, and I think that it will be helpful for testers. वेलकम टू टेक अनफिल्टर्ड विद मनीष. सो हाय गाइस, आज हमारे साथ आशुतोष हैं. आशुतोष द टेस्ट टाइप के को फाउंडर हैं. सो आशुतोष से जानना चाहेंगे कि उनकी जर्नी कैसी रही. मैं आशुतोष को जानता हूँ, वो एक टेस्ट इंजीनियर थे और अब वो एक को फाउंडर हैं जो कि जिसमें वो बिल्ड करना चाहते हैं वर्ल्ड की लार्जेस्ट टेस्ट कम्युनिटी. सो मैं जानना चाहूँगा आशुतोष, आपकी जर्नी कैसी रही फ्रॉम ए टेस्ट इंजीनियर टू ए को फाउंडर? So thank you, Manish, first of all, for having me here. You and me share a lot of commonalities in life and in general, from our native village to our careers, initial starting point. We share a lot, but always have great respect for your work, and I think ये अच्छा platform है for people to know others' experience. So yeah, yes, I started as an intern rather, for a company called MediaTek. MediaTek is semiconductors, and they say that every third electronic device in this world is powered by MediaTek today. So I worked in the mobile phone division there for about 12 years. Intern की तरह start किया था, and then grew up there in the ladder. And for 12 years, I left that company as department manager. तो जो team manager जो होता है वो उसको department manager बोलते हैं ऐसा. इस बीच मैंने अपना MBA किया था यार. तो I did my MBA from IIM Lucknow, which is a working managers program, where you go to classes 3 days a week. और काफ़ी rigorous होता है वो 2 साल का program. So which gave me a lot of exposure into कि careers are long-term marathons and they're not sprints. So you're going to work. मतलब typically if you look around us, we're going to work for 30-40 years easily. हम लोग काम करेंगे. And it's 30-40 years, we can't just be doing one thing. So you have to keep moving. So then I thought that I should move out of testing and do something more business side. So I was looking for opportunities, and then I was hired as a content marketing manager for a company, for a startup based out of Surat. And then I moved to another company. And then Mahesh, the founder of Test Drive, was looking out for his first hire. He was hiring a marketing person, and we knew each other for quite some time. तो उसने बोला कि why don't you join, because this will be a good mix for you and a good role, a good candidate for me, somebody who knows both testing and marketing. So there I started as a head of growth. We built the team together, and then after 1 or 2 years of my work, he promoted me as a co-founder. All thanks to him, and thanks for his kindness in doing this. दैट्स ग्रेट आशुतोष, काफ़ी इंस्पायरिंग जर्नी है आपकी. सो आशुतोष, मतलब आपने पहले एज ए मतलब टेस्ट इंजीनियर वर्क किया है, टेस्टिंग में आपने काम किया, तो क्या आपकी लर्निंग्स थी या क्या पेन पॉइंट्स थे जिनको आप टेस्ट ड्राइव में सोल्व करना चाहते हो या जिनसे आप सीख रहे हो और टेस्ट ड्राइव को बिल्ड कर रहे हो? हाँ, तो ये पेन पॉइंट्स कुछ कॉमन ही पेन पॉइंट्स हैं जो तब भी एग्जिस्ट करते थे और आज भी एग्जिस्ट करते हैं. एंड दैट इज लैक ऑफ अवेयरनेस. तो पहला पेन पॉइंट तो ये है कि टेस्टर्स लोग बहुत सेल्फ पिटी में रहते हैं. मतलब लाइक आई से ऑलवेज कि मोस्ट ऑफ अस आर एक्सीडेंटल टेस्टर्स. Nobody wanted to become, very few of us wanted to become testers by design. So most of us accidental testers, and hence they are always in a self pity mode. कि अच्छा, आप तो टेस्टिंग में आ गए, आप तो टेस्टिंग में फंस गए, आपको तो कोड करना था वैसा कुछ. They're always in self pity mode, and hence they're less proud of their own work. तो उन तो प्रॉब्लम ये था कि यार ठीक है, हम अपने बारे में किससे जाके बात करें. हम इज देयर अ फोरम वेयर वी कैन लेट्स से टॉक अबाउट आवरसेल्फ, टॉक अबाउट आवर वर्क, वेयर वी डोंट हैव द फियर ऑफ जजमेंट. तो जजमेंट का फियर ना हो हमारे पास. और अपस्किलिंग की ऐसी जगह जहाँ पे which is focused on testing, which is developed by testers. So there are upskilling things then also, आज भी हैं. But to have something which is designed by testers for testers, where the safe space वो पेन पॉइंट था, तब ऑब्जर्व किया था.
and I think Mahesh was solving this from quite some time. So when he told me about this, that you can come in here, तो मेरे को लगा कि हाँ, this is something which I wanted to solve also, and this is a good opportunity also to solve some kind of a problem like this. ओके। सो आशुतोष, मतलब अब तो टेस्ट ड्राइव ने काफ़ी इवॉल्व किया है, लाइक वर्चुअल इवेंट्स हैं आपके, आपके मीटअप्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, मीटअप चैप्टर्स हैं, कॉन्फ्रेंसेज होती है ईयरली, ऑफलाइन, ऑनलाइन, और देयर इज लाइक ह्यूज टर्नआउट। सो कैन यू वॉक अस थ्रू टू द लाइक इनिशियल डेज, स्टार्टिंग कैसे थी, क्या रिस्पॉन्स था लोगों का, कैसे लोगों ने आपको रीच आउट किया, कैसे आपने चीज़ों को स्टार्ट किया एज ए लाइक, आप पहले मेंबर थे टेस्ट ड्राइव के, देन को फाउंडर बने, तो इनिशियल डेज कैसे थे? हाँ, the initial days I'll talk to you about from what Mahesh ने जब start किया था तब से लेके, and I'll talk about the recent ones. So when he started again he found a gap that there is no community in India just focused on testers. There were always developers community, there were always community for other people, project managers community, but there was no community for testers as such. And then he realizes there's a gap. So then he floated this idea in his own company, and then thought, yeah, is there something which is workable? And then they started in Mumbai first, because Mumbai में था, he used to work and live in Mumbai. It still tells me कि यार पहले मीटअप पे ना 2 ही लोग आए थे। तो आज भी हम नए चैप्टर लीडर्स को बताते हैं ना कि यार कि मीटअप स्टार्ट करना है, तो कहते लोग आएंगे, तो हम कहते हैं पहले मीटअप पे 2 ही लोग आए थे इंडिया में, और आज इंडिया में बहुत लोग आते हैं। तो एंड यू नो दिस मोर देन मी, राइट, हाउ डिफिकल्ट इट इज टू बिल्ड अ चैप्टर। तो वो हुआ, फिर देन इट स्टार्टेड टू ग्रो स्लोली इन मुंबई, फिर बग बैचेस हैकाथॉन्स वगैरह कराए कुछ, देन इट अगेन गॉट अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन। Then we expanded to other cities. Thankfully, he got a lot of other people in other cities. So I used to help him in Noida at some points. So he used to get a lot of traction in small pockets in India, in all cities of India. So offline में सही चल रहा था, छोटे-छोटे मीटअप्स होते थे, बढ़िया चल रहा था, वर्कशॉप्स वगैरह होते थे, hackathons वगैरह होते थे। But then COVID hit. So COVID, and by the time Mahesh had created a good pool of 5-6 people who were strong pillars in this community building, good folks, senior folks. Then COVID hit, तो COVID में सब offline बंद हो गया, and then he realized कि यार there is something which can be, so now the only way was to go online. So online sessions, online webinars वगैरह सब start हुए, virtual events वगैरह, and उनको बहुत traction मिला। तो जब उनको traction मिला, तो then it got realization कि यार the problem is not just India specific. This is a global problem which you have to solve for. It's not just in India, Delhi, Mumbai, Bangalore का problem नहीं है, ये globally हर जगह का problem। तो इसको solve करना पड़ेगा globally ही। So we went more higher scale with this, and then he got some support from other companies, which allowed him to go full time. So by the time TestRep ने decent reputation create कर दिया था, अब when he went full time, he hired me. So then we had more muscle power, we had more focus, because part time में तो आपका focus limited ही होता है, आप just कितना भी करना चाहो। But once you go full time, so there was more focus on this. There was focus only on this rather more क्या, so service पे focus था हम दोनों का, and then we built a team together, and then we kept getting good love from people, and हमने realize किया that if we keep, Mahesh is a very he's very particular about the quality of work we do. So as much as we do a lot of events, our focus is on delivering high quality content to people, because if अगर हम high quality content देते रहेंगे लोगों को, people will keep coming to us for learning, for knowledge. They'll keep trusting us. And since then it's been going good because of the content we deliver. We'll be able to deliver, and of course with scale, the maintaining quality is a challenge, but we're trying our best. And in this process of maintaining quality, there'll be times we will falter, but we are committed to quality and good experience for all our learners, community members from all over the world. सो आशुतोष, बिल्कुल आपने सही कहा कि मैंने भी स्टार्टिंग में देखा है कि जब मैं कॉलेज टाइम पे था या फिर जब स्टार्टिंग ऑफ माय करियर, डेवलपर फोकस्ड इवेंट्स बहुत होते थे, बीइंग इट लाइक कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल इवेंट्स, वेबिनार्स, हैकाथॉन्स, बट टेस्टर स्पेसिफिक चीज़ें या तो बहुत ज़्यादा सीक आउट करनी पड़ती थी। मैंने भी बहुत सर्च आउट किया, लास्ट में टेस्ट टाइप के मीटअप्स में मैंने ज्वाइन किया है, बट उससे पहले मुझे भी कोई ऐसा टेस्टर स्पेसिफिक इवेंट्स ज़्यादा मिले नहीं, बहुत रेयर था कहीं, और उसकी उतनी पब्लिसिटी भी नहीं होती थी कि आप तक वो चीज़ें पहुंच पाए या आपको पता चल पाए कि यार कोई टेस्टर स्पेसिफिक इवेंट भी है। तो जब आपने ये चीज़ें स्टार्ट की, तो रिस्पॉन्स कैसा था लोगों का, कि मतलब टेस्टर्स को कैसा लगा कि हाँ ठीक है, उनके लिए कुछ हो रहा है, या फिर स्टार्टिंग में उन्होंने लाइटली लिया, बाद में धीरे धीरे एंगेज करना स्टार्ट किया?
तो वो रिस्पॉन्स आपको कैसा मिला व्हेन यू स्टार्टेड द इवेंट्स एंड मीटअप्स? हाँ तो यार आई थिंक दोनों ही चीज़ें हैं यार, मतलब देयर ऑलवेज अ ग्रुप ऑफ टेस्टर्स हु ऑलवेज थॉट कि ठीक है दिस इज, हम लोग इसके लिए काफी टाइम से वेट कर रहे हैं, एंड दिस वी सी आज भी हम देखते हैं इसको व्हेन वी लॉन्च 2 चैप्टर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, देयर विल बी सम पीपल हु विल ऑलवेज बी वेरी एंथुसियास्टिक यार, ठीक है यार अभी चलो हमारे लिए टेस्टर्स के लिए कुछ एक मीटअप हो रहा है, टेस्टर्स के लिए कुछ कम्युनिटी इवेंट हो रहा है या कुछ हो रहा है, एंड देयर विल राइट ऑलवेज बी पीपल हु विल कीप वेटिंग, वो वेट करेंगे ठीक है यार ये क्या ये वन ऑफ चीज़ है या ये कंसिस्टेंटली होल्ड करेगा। बहुत लोग वेट एंड वॉच करते हैं कि ठीक है यार, मतलब हम मैं अपने, अगर मैं फ्री में मीटअप जा रहा हूँ तो मैं अपने दिन के 2 से 3 घंटे इस चीज़ को दूँ क्या, इज इट वर्थ इट? तो वर्थ इट का वेट करते हैं when they see pictures and when they see good reviews coming from people and then they take a shot। तो आज भी वो वैसे ही मिक्स्ड है रिएक्शन, दिस इज नॉट मतलब आई कांट से एंड आई शुडंट से दैट दिस इज ऑलवेज वन साइड ऑफ द स्टोरी इज ऑलवेज लाइक कि कुछ लोग बहुत एंथुसियास्टिक फील करते हैं जो यार ग्रेट दैट समथिंग गुड स्टार्टिंग टेस्टर्स, एंड देयर आर सम पीपल हु विल ऑलवेज वेट एंड सी के ठीक है, is this something which will stay, is this something which is good? There are doubters and there are believers, राइट राइट all राइट। kinds of differences। एग्जैक्टली एग्जैक्टली लाइक जब हमने दिल्ली में भी या नोएडा में भी स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में टर्न आउट रेशियो बहुत कम था, लाइक 3-4, फ्रॉम ग्रोइंग टू लाइक 3-4 टू हमने 30-40-50 तक भी अचीव किया है एक सिंगल मीटअप में। सो ये हमने भी देखा कि लाइक कुछ लोग होंगे जो आपके हर मीटअप में रिपीट ऑडियंस होगी, जो जिनको चाहिए कि हाँ ठीक है यार महीने 2 महीने में कोई मीटअप हो, कोई इवेंट हो और हम इवेंट मतलब अटेंड करें, लोगों के साथ कनेक्ट करें। कुछ लोग होते हैं कि हाँ ठीक है एक आज अटेंड कर लिया, 6 महीने बाद फिर अटेंड कर रहे हैं। ये है कि एंथुजियाज्म लाइक डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में ही होता है, ये मैंने भी ऑब्जर्व Correct, किया है। but in बिल्कुल। general we are saying, सो in general if I have to say, we are very thankful to the community and we are getting good love from all over the world। तो ऐसा नहीं है कि the story is only the post story, बहुत अच्छी स्टोरी है, people are loving it and people are enjoying it and we are seeing it across meetups from both the companies, right? राइट राइट। हाँ, डाउन द वे हम जितना बिल्ड करते जा रहे हैं लोगों का इंटरेस्ट भी उतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, करेक्ट, और that's उसमें correct, मैं कहूँगा कि ठीक हम भी इम्प्रूव कर रहे हैं। प्रोबेबली जब हमने स्टार्ट किया था या फिर मैं ब्राउजर स्टैक के लिए जो मीटअप्स करता हूँ उसमें मैंने स्टार्ट किया था, तो स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें थी जो हम में भी नहीं समझ आती थी कैसे करना है। धीरे धीरे correct, correct, कम्युनिटी फीडबैक मिलता है, हम इम्प्रूव करते हैं, फिर कम्युनिटी को और इंटरेस्ट आता है और वी ग्रो एज ए होल। correct, 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 that's true। एग्जैक्टली। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो टेस्ट ड्राइव है जो आप कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं उसका कोर मोटिव क्या है, कि लाइक व्हाट प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग, और एक होते हैं ना कि कोर वैल्यूज किसी कंपनीज की या किसी ऑर्गेनाइजेशन की कोर वैल्यूज की, इनकी तरफ हम ज्यादा काम कर रहे हैं और इस चीज को अचीव करना है। Then हमारा core motive is fairly simple, which we repeat and which reinforce in every event of ours, is just to give the testing craft the glory it deserves। We believe testing craft is very important, बहुत important, testers are a very important piece in the puzzle, and they continue to stay important and they deserve glory, and that glory can only happen when they themselves want to be glorified। तो वो खुद फील करेंगे कि यार वो कुछ अच्छा काम कर, and that can only happen when they are more proud of their work and when they are more confident of their, and it can only happen when A, they feel safe, B, they feel heard, and C, they feel knowledgeable। They need to feel safe. We need to create safe spaces for them। All these communities, WhatsApp groups, small small micro communities, are spaces where people can communicate what they want to communicate without fear of judgment। So they need to feel safe in their heads, where they can be heard, they can talk to anyone, or they can vent out their uncertainties, ambiguities, apprehensions, fears। So वो secondly, they need to upskill। Upskilling was very important 5 years back also, and today it's important more than ever। Technology is changing at such a rapid pace that if we are not keeping us updated with the technology space, then we will lose track। And it's not just in testing; it's in all the professions। But testers face a prolonged battle, a multi-cornered battle, because they have to battle with AI, they have to battle with technology, programming etc. also, and they have to battle with the test craft। So they face three corner battle, where others, they say dev function will only face a battle with AI। But testers have to be very good in programming also। अब तो वो भी उनको लड़ाई लड़नी है, AI से भी दोस्ती करनी है, प्रोग्रामिंग से भी दोस्ती करनी है, और खुद को सुनाना भी है, मतलब and खुद को we have to make yourself heard also। तो the battle is a lot harder for them, but इसीलिए वो सेफ स्पेस क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसीलिए वो कम्युनिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है वेयर दे फील सेफ टू टॉक। राइट राइट राइट, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये तो हो गई, मतलब हमने टेस्ट टाइप की बातें की हैं, टेस्ट टाइप की स्टोरीज शेयर की हैं। अब मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कि मतलब इंडस्ट्री के इंसाइट्स के बारे में, टेस्टिंग के बारे में। सो आपको क्या लगता है कि मतलब कौन से अभी भी कॉमन रोड ब्लॉक्स हैं जो टेस्टर्स अभी भी फेस करते हैं, और ये कह सकते हैं कि हमने भी फेस किए हैं, या फिर इनिशियल डेज ऑफ करियर हमने स्टार्टिंग में फेस किए थे, मिडल में भी फेस किए और अब भी फेस कर रहे हैं लोग। कुछ चीज़ें हैं उसमें। फॉर एग्जाम्पल वन इज, मैं एक बार को ये मान लेता हूँ कि रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर एवरीवन, रिसोर्सेज की कमी नहीं। ठीक है, ये तो सबको पता है कि रिसोर्सेज की कमी नहीं। यूट्यूब वीडियोस, ब्लॉग्स, कोर्सेज, वर्कशॉप, बूट कैंप, बहुत कुछ है। देयर इज नो lack of resources, right? I think the most common roadblocks which people are now facing, I'll talk about both the sides. Okay, first is uh, first is about comfort zone. I think a lot of testers like I speak to every day, they're in comfort. They were in comfort zone. They are not in comfort zone, but they were in comfort zone for quite some time. Comfort zone में थे. Up suddenly, because of the macroeconomic environment, pressure is increasing. They have not upskilled themselves for quite some time. Now the pressure is increasing. And they're now in a situation where they need to upskill very fast. So instead of constant upskilling, पहले से ऐसे constant चलनी चाहिए थी। अब वो पहले से तो नहीं चली, या वो एकदम से वो पिक कर रही पड़ी। Then comfort zone is the first roadblock which I think people have, and which is in any profession. But in testing, it's all the more because, uh, like I said, lack of awareness about what they can do, lack of awareness about where they can go in career. तो उस चक्कर में और ज़्यादा प्रॉब्लम वो क्रिएट हो जाता है। Secondly, I think one of the other career roadblocks which they face is lack of good mentors or lack of good people who can guide them. हम लोग एक करियर में विदाउट मेंटर भी चल सकते हैं, ऐसा नहीं विदाउट मेंटर काम नहीं हो सकता। तो विदाउट मेंटर आप एक रास्ता टेढ़ा मेढ़ा मेज की तरह चल। द मेंटर कैन हेल्प यू, अ गुड मेंटर कैन हेल्प यू टू रिड्यूस द मेज ऑफ योर करियर। छोटा कर सकता है मेज। मेज को सॉल्व करने में आप हेल्प कर सकते हैं कि ठीक है, कि 10 चीज़ें पढ़ने को है। आज एक टेस्ट से पढ़ने जाता हूँ, देखता है अरे मैं तो बहुत साल से पढ़ा ही नहीं हूँ, अब मेरे को 10 चीज़ें पढ़ने को है, मैं शुरू कहाँ से करूँ, एंड कहाँ से। वो उसी पे कंफ्यूज हो जाता है, और वो देन देयर इज नथिंग व्हिच हैपेंस। सो अ लैक ऑफ मेंटर इज अगेन आई थिंक which is a good roadblock. and and there are and इस रोड ब्लॉक इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, बिकॉज ऐसा नहीं कि मेंटर्स नहीं है। इफ यू वांट टू, इफ पीपल कम टू यू फॉर मेंटरिंग, आई एम श्योर आप मेंटर करोगे उसको, है ना। और मेरे पास मेंटर आएगा, आई मेंटर, एंड देयर आर पीपल हु वांट टू मेंटर, दे हैव गॉट टू दैट लेवल वेयर दे नाउ थिंक दैट ओके आई वांट टू गिव इट बैक टू द कम्युनिटी। So lack of good mentors is one thing. This is on the one side of spectrum where people are aware that they want to upskill. They know the resources, but the journey from awareness to doing is a long journey which they don't know the path. The second kind of people are who are aware, who have the path, but they're consuming too much of information. So Right. there are people who are consuming too much of information and processing too less of it. So ये भी Right, ये right. भी एक ये भी एक this is also what I consider as a thing that when you consume too much of information, it's also उसके बाद एक सडन पॉइंट के बाद ना आपका इंक्रीमेंटल नॉलेज का जो फायदा है ना वो कम होने लगेगा, बिकॉज आपने कंज्यूम तो कर लिया बट प्रोसेस नहीं किया उस इन्फॉर्मेशन। एग्जाम्पल टुडे AI is the same thing. If you do a session on AI, there will be a lot of people coming in, but how to process that information, how to connect dots from 5 different sessions and make a story and learn, build on it is is not a roadblock, but वो challenge है लोग consume information को process करने का एक Right. challenge. So these are the three things which I think. One is lack of mentors, second is comfort zone, and third is consuming too much, processing too little. एग्जैक्टली। हाँ, इससे मैं एग्री करता हूँ। अगर मैं अपना एग्जांपल भी लूँ तो स्टार्टिंग ऑफ माय करियर, बीइंग इन ए कंपनी फॉर लाइक 5-6 इयर्स, एक कंफर्ट जोन में आ जाता है बंदा, और फिर सोचता है कि यार ठीक है, कर लेंगे, कुछ सीख लेंगे। और जब सीखने जाते हो तो आपको पता नहीं होता सीखना क्या है, ठीक है। और जब देखते हो कि चीज़ें चीज़ें इतने सारी है कि ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, डिमांड किस चीज़ की है उसका आपको उतना आइडिया नहीं है, आपको सीखना कहाँ से है उसका आपको आइडिया नहीं है। फिर अनटिल अनलेस मेरे साथ भी जब वो वाली सिचुएशन नहीं है कि ठीक है कंपनीज में ले ऑफ हो रहे हैं, अब तो ठीक है यार, अपस्किल करना ही पड़ेगा, कहीं और बेटर अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ेगी, तब तक हम उस कंफर्ट जोन में ही रहते हैं। मैं भी उतने 5-6 साल उसी कंफर्ट जोन में था। हर साल हम प्लान करते कि हाँ यार ये चीज़ें सीखेंगे कुछ, ठीक है,
कुछ अप्रिसिएशन मिले, कुछ हम अप्रेजल ले सकते हैं, कहीं पे मूव आउट कर सकते हैं, बट ठीक है वो प्लान्स ही रहते हैं अनटिल अनलेस आपके पास एक गाइडेड थिंग ना हो कि यार ये स्टेप्स हैं, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे कर लेंगे तो चीज़ें जल्दी अचीव हो जाएंगी। Correct. सो ये आपने तो वो बिल्कुल कोट ठीक है ना कहा कि यार, मतलब वो तुम्हारे लिसनर्स के लिए there's a quote that the more you sweat in peace the less you bleed in war। मतलब जो शांति में पसीना बहाने के राइट साथ राइट तो राइट, उतना जंग में खून कम निकलेगा वैसा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। सो अच्छा तो नेक्स्ट हमारा वो है कि ठीक है ये तो चीज़ें हम फेस करते आ रहे हैं पास्ट से, और ठीक है अब धीरे धीरे लोगों को समझ आ रहा है कि कैसे गाइडेंस सीख करनी है, कैसे मेंटरशिप को आप लेवरेज कर सकते हो, क्योंकि आज बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो लोगों के साथ। इवन लिंक्डइन भी मैं कहूँगा कि लोग उतना यूज़ नहीं करते थे पहले, अब एटलीस्ट सबकी प्रोफाइल तो है, उन्हें पता है कि लिंक्डइन से आप किसी को रीच आउट कर सकते हो, लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हो। लोग लिंक्डइन को एज ए टूल भी यूज़ करने लगे हैं, पहले नहीं करते थे। तो अब प्लेटफॉर्म्स हैं, मीटअप्स होती हैं, टेस्ट ड्राइव है, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं, वो मेंटरशिप सीख कर पाते हैं। तो ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पहले वो चीज़ें नहीं थी, अब चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं और लोग अडोप्ट भी कर रहे हैं उसको। सो इसी कॉन्टेक्स्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतलब ठीक है फ्यूचर में कैसे ये चीज़ें शेप करेंगी, लाइक ऑटोमेशन बहुत हैवी होने लग गया है, अब एआई आ गया है, तो कैसे एआई और ऑटोमेशन ये सब चीज़ें टेस्टिंग को शेप करेगा, और किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, या किस टाइप के लोग सीख कर रहे होते हैं कि आज के टाइम पे कि कैसे हम इन चीज़ों में इवॉल्व करें, कैसे हम एआई ऑटोमेशन और ये चीज़ से सीखें ताकि ये हमारे करियर पे एक इम्पैक्ट बना पाए। I think AI will definitely shape the future of testing. It will not just like it is shaping the future of technology, it will also shape the future of testing. So I think it's going to have a good amount of impact. Massive होगा कि नहीं होगा टाइम बताएगा, and it's not right time to tell that it's massive or not. It's going to have a good amount of impact on testing. We're seeing a lot of AI based tools being evolved in testing as such. A lot of AI based innovation is happening in testing industry also. With AI, I think one of the there's an automation. We see a good automation engineer will also be a great tester. मतलब मतलब typically, if you evaluate from that standpoint, right? From a cohesive standpoint, a good automation engineer will also be a good tester. So testing craft का knowledge will all the become more important because with AI being coming in, कोडिंग जो पहले थोड़ा जिसमें बैरियर्स टू एंट्री ज़्यादा थे, थोड़ा सा मतलब लोगों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़नी पड़ती थी या सब करना पड़ता था, अभी पढ़नी पड़ेगी, बट बैरियर्स टू एंट्री थोड़े कम हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द एआई बीइंग इवॉल्व्ड एंड बट still to become a great AI based code generator also or a great prompt engineer also, you need to become a great tester. Otherwise, you will always generate substandard code or substandard frameworks for your company. So I think while AI and automation has had an impact, AI will have an impact, but the knowledge of great testing craft will become all the more important. AI might kill some roles, but it will also lead to evolution of some new roles for the industry. So it's going to be a balance. The thing is that we need to keep going and we need to keep evolving ourselves as individuals. एग्जैक्टली सेम, मतलब मैं भी यही पॉइंट रखता हूँ कि ऑटोमेशन में क्या था कि ठीक है हम कुछ जो टास्क पहले करते थे उसकी स्पीड फास्ट हो गई है, वे ऑफ एग्जीक्यूशन इज लाइक मोर एफिशिएंट। एआई आई थिंक उसको और फास्ट कर देगा। सपोज कुछ चीज़ हम बहुत पहले एक्स अमाउंट में करते थे, ऑटोमेशन से हमने उसको हाफ कर दिया या फिर वन थर्ड कर दिया, एआई से प्रोबेबली वो 1/5 टाइम्स या 1/10 टाइम्स हो जाए। बट हमें ये देखना है कि प्रोसेस क्या कर रहे थे हम। एक रूल आज भी मतलब एआई के साथ भी लागू होगा, गार्बेज इन गार्बेज आउट, Correct. कि आप उसको फीड क्या कर रहे हो जो आप उससे निकालना चाह रहे हो। ऐसा नहीं है कि Correct. एआई कोई मतलब मैजिशियन है कि ठीक है आपका वो सब कुछ Correct. फिक्स कर देगा, Correct. आपको सीखना पड़ेगा। Correct. And जैसे कि depending on training data, AI also might have a bias कि भाई उसका training data एग्जैक्टली कितना कितना fair है, कितना unbiased है. So it might also have a bias. So it बिल्कुल। will just need a human interpretation. और एक चीज और है कि लोग बहुत पूछते हैं कि यार एआई से हमारी जॉब नहीं चली जाएगी, एआई आने के बाद हमारा काम तो एआई कर देगा, हम क्या करेंगे। तो इवोल्व तो होना पड़ेगा, ये भी एक कॉन्टेक्स्ट है कि मतलब सपोज हम अगर पास्ट में भी देखें, जब पहले मतलब रिक्शा चलते थे या फिर बैलगाड़ी टाइप चीजें चलती थी,
तो उसके बाद जब गाड़ियां आई तो लोगों को ड्राइवर पे स्विच होना पड़ा। आज करेक्ट भी वो सेम साइकिल चला के या वो चला के काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि करेक्ट उनका डिमांड बहुत लो हो जाएगी। फिर उनको करेक्ट सीखना पड़ेगा कि कैसे वो कार को ड्राइव कर सकते हैं। करेक्ट तो टेक्नोलॉजी लीड्स टू एवोल्यूशन एंड टेक्नोलॉजी राइट, राइट, will always lead to newer things getting evolved, and that's why people who evolve largely एग्जैक्टली। will still continue to be relevant. वही है इसका पॉइंट यार। ठीक है। सो अब मतलब नेक्स्ट चीज है हमारी कि जब मतलब हम लुकिंग एट लाइक न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला है 2025, तो क्या स्किल्स है आपके अकॉर्डिंग जो टेस्टर्स को फोकस करनी चाहिए जिससे कि वो रेलिवेंट रह सके, बीइंग इन इनटू द एआई स्पेस और टेस्टिंग एज ए क्राफ्ट, और मतलब क्या चीजें हैं जो उनको फोकस करनी चाहिए कि दे विल बी मोर रेलिवेंट टू द इंडस्ट्री, बिकॉज चीजें बहुत जल्दी से चेंज हो रही हैं। तो कोर स्किल्स आई थिंक जो आपको लगता है कि हाँ ये तो इन डिमांड रहेंगी और ये टेस्टिंग की एक तरीके से मेजर बैकबोन है। ठीक है यार, मैं हमेशा जब when I speak to people I tell that a tester of tomorrow not in literal sense tomorrow, उसके पास ये 5 से 6 स्किल्स या ट्रेड्स या रिसोर्सेज होने चाहिए। वन इज सॉलिड नॉलेज ऑफ टेस्टिंग क्राफ्ट, मतलब जैसे मैंने पहले बोला कि भाई विदाउट दैट आई थिंक and this is all about if you want to be a great tester, if you want to be a great tester, if you want to stay an average tester, then you can skip one or two or skip all of them, it's on you. But if you want to stay a great tester, these skills you will need. One is to have some knowledge of automation craft, because with AI being in, कोडिंग थोड़ी डेमोक्रेटाइज होगी, तो आपको टेस्टिंग क्राफ्ट नॉलेज सॉलिड करना पड़ेगा टू राइट ग्रेट, दैट्स वन। सेकंड, बीइंग वेरी टेक savvy. As we grow in careers, you will find very less JDs which talk only about functional testing. There's a lot more demand about. There are very few JDs which talk only about functional testing, right? You need to know great automation, and as you keep growing, the hard reality is that you will be expected to know a lot of other things: performance also, security also, accessibility also, API also. कुछ expectation होती है as you grow, because your salaries keep increasing, you are being paid a lot more, so expectations also a lot more from you. And again, the journey from good to great will also depend on कि आपको डोमेन कितने अच्छे पता है. You are working on a fintech product. How good a fintech person are you as a knowledge? आपको प्रोडक्ट आर्किटेक्चर कितना पता है? अब लोग बोलते हैं कि प्रोडक्ट आर्किटेक्चर डेवलपर को भी नहीं पता होता. फेयर है. हो सकता है आप चॉइस ले लो कि आपको गुड से ग्रेट की तरफ जाना है कि नहीं जाना है. अगर वो जाना है तो फिर पता करो. ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि पता होना चाहिए, बट वो जर्नी आपकी है कि आपको गुड से ग्रेट की तरफ जाना है कि नहीं जाना है. अगर जाना है तो भाई then you have to be aware, then you have to be prepared for all those things. Third is make AI your friend, make AI your ally. ये कोई फैड नहीं है, ये कोई कहने वाली चीज़ नहीं है, ये रहेगा ही रहेगा. एंड अभी हम लोग चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनी वगैरह से सिर्फ हम लोग एक सरफेस स्क्रैच कर रहे हैं बाय राइटिंग प्रॉम्प्ट्स एंड जनरेटिंग आउट. बट इफ यू लुक अराउंड अस, राइट, इफ यू लुक अराउंड अस, एवरीथिंग इज गोइंग टू बिकम एन एआई बेस्ड थिंग. मोस्ट वेबसाइट्स हैव नाउ सम कुछ ना कुछ एआई कंपोनेंट होगा ही होगा. हमारे फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन सब में भी वो बोलते हैं कि एआई है. थिंग्स आर ऑल अराउंड अस आर गोइंग टू बिकम एआई. Now with AI the outputs are not so deterministic as with a web app. ठीक है, आपने एक इनपुट डाला, हर बार आउटपुट सेम ही आएगा. They are very the output of the same prompt at two different times can also be different. Correct? So outputs are not very deterministic. So how do we test the AI engine itself? How do we test AI itself is going to become a very important skill in the next 1 or 2 years. So अभी उस पर बात ही बहुत कम होती है. अभी सब लोग उस पर बहुत सुपरफिशियल बात करते हैं. बट हाउ डू वी टॉक अबाउट टेस्टिंग एआई itself, and that will need, and again, to become a great person who can test AI, you need to be great at a lot of more things. मतलब टेस्ट उसका फंडामेंटल मैथ्स से, प्रोबेबिलिटी से, स्टैट्स से चालू होता है. तो the studying effort is a lot more, the knowledge grasping effort is a lot more. That's the third thing. The fourth thing is सॉफ्ट स्किल्स की रिक्वायरमेंट अभी और कम नहीं होगी, बल्कि और बढ़ेगी. How do you do stakeholder management? How do you do negotiations? For example, someone like you, Manish, was come from a very humble background and now doing a lot more personal branding. You now see the impact of personal branding. Personal branding का कितना impact है आपके career में, correct? So how do we build a solid personal brand? Because a personal brand is not just for external people; it's also for internal company. ठीक है, इस बंदे का ना बाहर बहुत solid personal brand बना हुआ है. People like his work. People like what he says. वैसा. Soft skills are going to become very important. Fifth is
access to a community. This is not a skill as such, but this is a tool in your armory. And I'm not saying because because we run the test, right? But if you look around us, हम अगर आसपास देखेंगे ना, तो we've always been surrounded by communities. हम लोग अपार्टमेंट में रहते हैं, अपार्टमेंट ग्रुप से कम्युनिटी. We play cricket group as a community. We stay, let's say, in a interest group. This is a photographers group. That's a community. We traveling is a community exercise, right? We do moving watching together in a cinema hall. That's a community exercise. Otherwise, movies on Netflix पे भी देखते हैं. But when you watch in the cinema hall, it's a community exercise. That we need access to communities. And having access to a testing-based community is very important because there'll be questions, there'll be concerns, there'll be fears. You can't ask in your office because you'll be judged. अभी तुमको अपने मैनेजर से एक हेल्दी डिबेट करना है कि मेरा अप्रेजल ये रेटिंग की जगह ये रेटिंग होना चाहिए. Whom do you ask in the organization? The chances are very less because there'll be internal politics, there'll be internal friction, things like that. आप घर में पूछ सकते हैं because घर पर उन लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है, वो कॉन्टेक्स्ट नहीं है. You need access to a community of people, which could be 5 people community, 10 people community, 100 people community. It's on your where you can discuss all those things. The world is getting lonelier, and need for communities is going to only increase from here. And this community then becomes your punching bag. Also becomes your resource library. Okay, you get stuck in a particular thing. Okay, that I'm stuck here. Somebody might have also been stuck in the same situation. He can help you. Okay, that do work like this and this. So access to a community is going to become important. Again, from a good to great standpoint, is your own call. And last, like I said, having access to mentors. Mentors are going to become very, very important, is what I believe. Because otherwise, we will still navigate a journey. But without a mentor, we'll do it a very hard way. We can reduce some hardship if we have a mentor who can guide us. Right. So that's also skills. In terms of skills, testing craft, automation, AI is soft skills. In terms of access, community and mentors. बिल्कुल. सो बहुत कनेक्ट कर रहा हूँ मैं इस चीज़ में कि मतलब हाउ कम्युनिटी प्लेज ए रोल. आप आइसोलेशन में रहते हो जब आप मतलब एक कंपनी में काम करते हो, या फिर आप किसी चीज़ के लिए एक्स्ट्रा आइडियाज़ भी जनरेट करोगे, तो वो एक सिमिलर थिंकिंग वाला माहौल होगा. इट्स लाइक कि मतलब वो आपके डोमेन के लोग होंगे, आपकी नॉलेज होगी, हो सकता है उनकी नॉलेज आपसे 20-30% एक्स्ट्रा हो, बट वो सिमिलर डोमेन में होगी, एक सिमिलर वे में होगी. अगर आपको सीक आउट करना है कि कुछ डिफरेंट कैसे होता है या बाहर कैसे चल रहा है, सपोज आपकी बैंकिंग की कंपनी और आपको पता करना हो कि यार ई कॉमर्स में कैसे टेस्टिंग होती है, या फिर आपको पता करना है कि यार ये जो स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स होती हैं ये टेस्ट कैसे करती हैं, ये बिल्ड कैसे होती है, इनका सिस्टम डिज़ाइन कैसे वर्क करता है, कैसे हम हॉटस्टार पे 1 करोड़ लोग 2 करोड़ लोग एक साथ मैच देख पाते हैं. तो वो कम्युनिटी से ही आता है. प्रोबेबली कोई होगा जो वहाँ पे वर्क करता होगा, या प्रोबेबली किसी ने वहाँ पे काम किया होगा, उसको आइडिया होगा कि यार ये चीज़ें होती हैं, तुम्हें वहाँ पे मूव करना है तो तुम ये चीज़ें सीख सकते हो. सो डेफिनेटली मतलब कम्युनिटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है जब आपको एक बड़े पर्सपेक्टिव पे ग्रो करना है, तो रादर देन मतलब आप एक सिंगल रोड पे ही जा रहे हो. अगर आपको मतलब मल्टीपल करियर पास और मल्टीपल डोमेन्स में एक्सपर्टीज चाहिए, तो कम्युनिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी इस चीज़ में. मैं एग्री करता हूँ इस चीज़ के लिए. ठीक है. सो आजकल मतलब एक जनरली एक डिबेट चलती है. रिसेंटली मतलब मैंने एक मीटअप ज्वाइन किया था, उसमें भी लोग मतलब बहुत वो कर रहे थे कि बहुत सारी कंपनी पुश करती हैं कि उनके इंजीनियर्स या मतलब जो डेवलपर्स होते हैं वही टेस्टिंग सीख लें, वही टेस्टिंग कर लेंगे, तो मतलब टेस्टर्स की टेस्टिंग का रोल कम हो जाएगा. या फिर हमने क्रॉस क्वेश्चन भी किया, तो ऐसे तो मतलब टेस्टर्स भी डेवलपमेंट सीख सकते हैं, तो डेवलपर्स का रोल कम हो जाएगा. तो इस पे मतलब आपका क्या टेक है कि मतलब क्या एक डेवलपर जो टेस्टिंग सीख के टेस्टर्स को रिमूव कर सकता है, क्या वो मतलब एक पिन पॉइंट वो वाली टेस्टिंग कर सकता है, या फिर इससे मतलब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी रादर देन मतलब हम देखते हैं मतलब डेवलपमेंट में देखते हैं कि फुल स्टैक डेवलपर होता है, तो वो ऑलमोस्ट फ्रंट एंड डेवलप कर लेता है, बैक एंड कर लेता है, तो ठीक है उसको क्यूए भी सिखा देते हैं. तो इस पे आपका क्या टेक है कि मतलब क्या ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर ये चीज़ें और चीज़ों को कॉम्प्लेक्स बनाएगी कि मतलब वो एक सिंगल चीज़ पे फोकस नहीं कर रहा होगा, तो वो हर चीज़ ऊपर से देखेगा. खैर वो I think technology is a thing where see मैं जर्नलिस्ट हूँ बाय नेचर, तो मैं हमेशा having multiple skills always prefer करता हूँ. तो from my own personal standpoint, having multiple skills always help. But then there are philosophies and there are right philosophies that a person should be T-shaped, and something which is
एंड समथिंग इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट. अब डेवलपमेंट को लेट्स डेवलपमेंट हम कोई अपने लिए कर नहीं रहे हैं, हमें प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं. तो वी क्रिएटिंग समथिंग व्हिच विल बी यूज्ड बाय अ लॉट ऑफ पीपल एंड वी वांट दैट समथिंग शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी. while there is no denial कि developers can test and testers can develop, वो हो सकता है. मतलब ये कोई कोई ये कोई मनाही नहीं है इस चीज़. बट हाउ डू यू मेंटेन क्वालिटी ऑफ द डेवलपमेंट यू डू without losing focus is also going to become very important. मतलब करने को तो when resources get crunched, people end up doing it. But then time is a constraint. Time of a developer is a constraint. He spends that time writing great code for a product, or he spends that time writing average code and doing average system. That choice has to be that choice has to be from a leadership standpoint, from a cultural standpoint कि हमको which direction do we want to go. Because product development कोई मतलब कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है. There are thousands and millions of users going to use. Exactly. So the lack of a good product or the lack of a good quality in your product can lead to major reputation losses. So ऐसा होता है ना कि ठीक है एक प्रोडक्ट में कुछ बग दिखा and then people just start uninstalling that all this. यार ये तो नहीं चल रहा. Millions of people. It takes years to build a reputation and it just takes a few seconds to restore that reputation. वैसा हो सकता है. बिल्कुल. इसलिए मतलब while this is doable and I am a journalist by nature, I believe that if time is a constraint, let people do what they're supposed to do with good quality. Is what is my personal recommendation. राइट. एग्जैक्टली. लाइक मेरा भी टेक वही है कि कुछ एरिया आप कर सकते हो कि ठीक है हमें डिपेंडेंट नहीं होना है. राइट. कि डेवलपर्स यूनिट टेस्ट लिखते हैं, कुछ जगह एसडेट्स यूनिट टेस्ट लिखते हैं, कुछ जगह होता है कि लेकिन ठीक है थोड़ी सी सैनिटी या स्मोक टेस्ट डेवलपर नहीं कर लिया टू मेक द जॉब इजी फॉर द टेस्टर. लाइक टेस्टेबिलिटी है एटलीस्ट उस प्रोडक्ट में, बट आप सब कुछ डेडिकेट नहीं कर सकते. आपकी जो एक स्पेशलिस्ट वाली चीज़ होती है वो एक मेजर रोल प्ले करती है जब आप किसी वर्क को एक हाई क्वालिटी में करना चाह रहे हो. सो इस चीज़ में मैं भी एग्री करता हूँ कि ठीक है कुछ एरिया टाइम क्रंच है. ठीक है हम भी यूनिट टेस्ट लिखते हैं, टाइम क्रंच है तो डेवलपर्स के पास उतना टाइम नहीं है, वो फीचर्स ज़्यादा बिल्ड कर रहे हैं. ठीक है एज एन एज डेट लाइक ठीक है मैं आता हूँ कि तुम्हारे 20% यूनिट टेस्ट की कवरेज है, ठीक है मैं एड ऑन कर लूँगा, एटलीस्ट हम इसको 80% तक ले जाएंगे. और समटाइम्स मतलब टेस्टर्स के पास ज़्यादा वो है तो डेवलपर थोड़ा ठीक है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, बट वो पास ऑन नहीं कर सकते कि ठीक है परमानेंटली तुम ही करोगे. हेल्प करना एक डिफरेंट चीज़ है, बट उसको एक एज इट इज आप ये नहीं कर सकते कि ठीक है आज से डेवलपर ही टेस्ट करेगा, हमारे पास टेस्टर्स नहीं है, या फिर एसडेट्स को ही हम सारा यूनिट टेस्टिंग करना दे दें या कंपोनेंट टेस्ट लिखना दे दें. वो भी मतलब उसमें भी डेवलपर और टेस्टर मिलकर ही चीज़ें करते हैं. इट्स मोर अबाउट लाइक कोलैबोरेशन, कैसे आप कंप्लीटली मिलके चीज़ों को कर रहे हो रादर देन आप सिंगल हैंडेडली किसी चीज़ को अचीव करना चाह रहे हो. That's मतलब मैं ये मानता हूँ कि डेवलपर टेस्टर रिलेशनशिप इज नॉट रिलेशनशिप ऑफ अ क्लैश. It's a relationship Right. of being of blending. That's the relationship we should strive towards. सो अब थोड़ा हम पास्ट की बातें करेंगे क्योंकि बहुत रिलेट कर पाते हैं हम एक दूसरे को, क्योंकि जो मेरी स्टार्टिंग कंपनी थी और आपकी स्टार्टिंग कंपनी थी इट्स बिट ऑफ फ्रॉम से लाइक सेम सेगमेंट. राइवल्स थे, कॉम्पिटिटर्स थे, बट एटलीस्ट वर्क सेम था. चिपसेट मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग ऑफ द हार्डवेयर एंड ऑल दैट. सो वहाँ पे मतलब एक कल्चर होता था बग बैश टाइप वाला कि अकाउंट किसका हाई होगा, किसने कितने इश्यूज डाले हैं. इवन मतलब पॉइंट सिस्टम भी था कि आप क्रिटिकल इशू डालोगे तो उसके इतने पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर आपने सपोज लाइक यूआई का इशू डाला तो उसके कम पॉइंट्स हैं. और जो ज़्यादा मतलब एक मैं अपना बताता हूँ, मतलब हमारी कंपनी में तो ये था कि मतलब मंथ के एंड में एक प्रॉपर डिस्प्ले होता था लीडर बोर्ड टाइप की, किसने सबसे ज़्यादा इश्यूज डाले हैं, टॉप 10 कौन आया है, उसके हिसाब से उनको प्राइजेस मिलते थे, उनके अप्रेजल्स उसी हिसाब से होते थे. सो आपको क्या लगता है कि मतलब वो कल्चर आज भी एग्जिस्ट करता है या चीज़ें इवॉल्व हुई हैं? यार उसको तो क्लैरिटी नहीं है कि आज भी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, बट आई थिंक थिंग्स हैव इवॉल्वड अ लॉट फ्रॉम दैट पॉइंट. Things have evolved a lot. Today testing is not same as that which was 16 years back जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था. तब today's testing is a lot different from what we were doing then. While उस सिस्टम में कुछ फंडामेंटल फ्लॉज थे कि it lead to a lot of duplicacy in finding bugs and things like that.
but Right. it had some merit also, that it led us to finding it created good analytical and good curiosity in us always to keep Mm-hmm. finding bugs, because there was a motivation attached to it. So I think from that standpoint, today's, like I explain it out to people, I don't get to hear this a lot. So things have certainly evolved a lot. And I was speaking to somebody else yesterday also, my ex-colleague, and we were talking that that तब के टेस्टिंग आज के टेस्टिंग में जमीन आसमान का फर्क आ गया यार. बट क्राफ्ट की इंपॉर्टेंस पे तब भी स्ट्रेस था, और आज भी स्ट्रेस होना चाहिए, इज व्हाट वी Exactly. genuinely believe. I think it Mm-hmm. has evolved a lot. Especially the kind of products which we test has also evolved यार. तो हम लोग बहुत ज़्यादा डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशंस टेस्ट करते थे. Today we do more Mm-hmm. web based, mobile based applications. So I think that technological evolution has also happened in terms of the product, but testing has also evolved a lot, is what I think. राइट राइट. मतलब ये चीज़ मैंने भी मतलब अब फेस की है कि अब हमारा फोकस थोड़ा सा चेंज हो गया है. मतलब एटलीस्ट जहाँ पे मैंने काम किया है, जिन क्लाइंट्स के साथ मैंने काम किया है, पहले फोकस ज़्यादा रहता था कि आपको ज़्यादा इश्यूज डालने हैं. एक टेस्टर को बहुत स्टार्टिंग से बोला जाता है कि आप जितने बग ढूंढोगे आप उतने अच्छे टेस्टर हो. बट अब जहाँ तक मैं देखता हूँ कि मेरा फोकस मोस्टली ये रहता है, या फिर मेरी ऑर्गेनाइजेशंस में वो वाला कल्चर है कि बग डालना इज अ डिफरेंट थिंग और उसको फिक्स कराना इज अ डिफरेंट थिंग. आप कैसे डेवलपर के साथ मिलके, अब क्या होता है, हम बहुत बार क्या होता है कि कोई इशू मिला डेवलपर के साथ, आप कनेक्ट कर रहे हो कि हाँ यार मुझे लग रहा है कि ये चीज़ एक इशू है, और उसको लगता है हाँ हाँ लग रहा है कि ये कुछ प्रॉब्लम है और ये यहाँ से कोई छोटा सा कोड है जो चेंज होएगा. तो कितनी बार हम उस चीज़ को फाइल भी नहीं करते हैं कि ठीक है कि यार पूरा उसको एक बग को डालोगे उसका एक काउंट जाएगा, ठीक है डेवलपर ने देख लिया, डेवलपर ने समझ लिया, मेरे सामने फिक्स कर दिया, उसने मुझे फिक्स दे दिया और मैंने ठीक है रीटेस्ट कर लिया, परफेक्ट है, सब चल रहा है. सो ये चेंजेस तो आए हैं कि अब काउंट पे ज़्यादा फोकस नहीं होता, रादर देन Correct. फोकस इज ऑन कि आप उस फीचर को या फिर उस बिल्ड को कितना अच्छे से टेस्ट करके उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हो. Correct. That is true. सो राइट राइट. ओके, सो अब थोड़ा सा हम बात करेंगे कि कैसे आप कम्युनिटी को बिल्ड कर रहे हो एज ए लाइक प्रोडक्ट मैनेजमेंट बेस ऑफ टाइप से, थोड़ा टेस्टिंग से हटके, कि जैसे अब कम्युनिटी स्केल कर रही है, टेस्ट टाइप बहुत स्केल कर रही है रैपिडली, सो आप उसकी क्वालिटी को कैसे मेंटेन करते हो? हाँ यार, तो मेंटेनिंग क्वालिटी एट स्केल इज सर्टेनली अ चैलेंज. मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत इट्स वेरी इजी दैट यू मेंटेन चैलेंज, दैट यू मेंटेन क्वालिटी, बिकॉज when you do a lot of, and communities like TestWeb are driven by volunteers, and when you are driven by volunteers, and you play a lot of trust on them. First is that we're trying to document everything. We're trying to put more guardrails in the sense कि ठीक है यार, ठीक है, okay, that okay, this is checkpoint which you want to achieve before we, let's say, make an event live or do a session. We want to achieve that. Right. And because it's a lot volunteer driven, and then we communicated to them also that okay, that what is important for us is, of course, that we want to have a good crowd in the meetups, or we have a good crowd in online events, but to maintain that quality also is very important, because ऐसा हो सकता है कि इस सेशन में तो लोग आ जाए, बट फॉर देम टू कम रिपीटेडली, वो तभी होगा जब या तो एक्सपीरियंस और क्वालिटी दोनों अच्छा होगा उन लोगों का आने के लिए. So I think we are doing this through putting in guardrails, which is, let's say, documenting what is the expectations, reviewing each topic's outline and content, and seeing whether it will make a sense for our community or not. There are a lot of topics which are not very audience attracting topics, but we still go ahead with them, because we as a community believe that we need to talk on all the, हमको सब चीज़ों पे बातें करनी, तो ऑडियंस ना है, इट्स ओके, बट बातें सब चीज़ों पे करनी है, तो वो करते हैं. So that's first in putting in documentation of expectations, then reviewing every possible thing, and then for sessions again, if possible, reviewing the content also, which goes in the actual session. We also collect user feedback very religiously, and we pay attention to it religiously, and we try and solve for all the feedback which we get. Of course, some take time to solve, but we attempt to solve all the feedback which we get. That's the fourth thing. And therefore, community, I think we are always aware. We always have to stay active. Communities, if you're running a buzzing community, then there is no time for you to, let's say, not pay attention to it. You always have to pay attention to the community. What kind of conversations are happening? People are not abusive. People are not let's say, not talking to each other in bad words. So we have to be very and if people are looking for answers, are they getting answers or not?
Are they getting the help they want or not? So you have to be always aware of this. From a session standpoint, put guardrails, put documentation, do more reviews, collect more feedback, work on the feedback. From a community standpoint, be more aware, just be active there and help for what you're trying to help people for. सो इसके साथ मतलब एक और चीज़ भी मैं बात करना चाहूँगा कि अब जो फाइनल सर्कल के बारे में टेस्ट टाइप ने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया फाइनल सर्कल, जिसमें कि हम लाइक आपसे सुनना चाहूँगा कि मोर बेटर वे में कि कैसे फाइनल सर्कल लोगों को हेल्प कर रहा है और क्या मतलब फ़ायदे मिल रहे हैं, क्योंकि मैं लिंक्डइन पे देखता हूँ आप काफ़ी स्टोरीज शेयर करते हो लोगों के बारे में जो कि टेस्टिंग से रिलेटेड है, या कैसे फाइनल सर्कल उनको बेनिफिट दे रहा है, या फिर कैसे वो दूसरे लोगों से कनेक्ट कर पा रहे हैं जिससे उनकी हेल्प हो रही है, उनको एक मेंटर मिल रहा है। सो थोड़ा सा उसके बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि फाइनल सर्कल है क्या और कैसे मतलब एज ए टेस्टर अगर मैं ज्वाइन करूँ या एज ए टेस्टर कोई 2025 में फाइनल सर्कल को ज्वाइन करता है तो उसको उसको ग्रोथ कैसे मिलेगी और उसको उससे फ़ायदा क्या होगा? The final circle is like an annual membership, like we pay an annual gym membership for our physical upkeeping. It's for our testing upkeeping. It's like an annual membership. Okay, Right. and we're trying to solve the problems which I told, which are going to become important. First is having great knowledge of testing craft, having great tech skills is going to become important, and we're solving this through our courses and our codes. हम लोग उस तरह solve कर. Third thing is AI. Now for AI, if you now Google and search, there are millions of resources, Exactly. of resources. Correct. What is lacking is a structured way of learning AI for testers. The tester एक AI को कहाँ से पढ़ना चालू कर, कहाँ पे फिलहाल के लिए खत्म कर दे. फिलहाल के लिए खत्म तो हमेशा कभी नहीं हो सकता है because it's evolving. Exactly. फिलहाल के लिए कहाँ पे खत्म कर दे. We created a curriculum for testers to learn AI from basics of AI to using and testing generative AI-based applications. Again through live sessions, through access to instructor, through assignments, to projects. तो वो एक चीज़ है उसमें. ठीक है. Third thing is access to community. Again, access to community and community of people who are as ambitious as you, if not more. So when you are around like-minded people, then you also get motivated. When you also see, अच्छा यार कई लोगों ने ये बोला कि ठीक है मैंने ना सेशन से मेरे को इतना फायदा नहीं मिला, but just being in the community is opening my mind, is changing my mindset. Okay, that I should do like this. So even if people are silent in the community, even if they are not attending sessions, they are getting impacted by the kind of conversations which happen in the community, because they're again like-minded people who are ambitious, people who are focused on upskilling. So उससे उनको बहुत फायदा होता है. The next thing is we also do something called growth master classes. So again, these are live sessions which happen once every month on soft skills. Now, for example, if I have to do a session on LinkedIn for testers or AI, using AI for AI in LinkedIn, I would rather do it from someone who was जिसने उसको एक्चुअली क्रैक किया, जिसके खुद के 60,000 फॉलोअर्स हो, जिसने उसको क्रैक किया, what is proof of work behind him or her to learn, to make sure. So we're trying to get instructors who have solved the problems which we are now trying to solve for our members. So that's the third. That's the next thing. Then there are mentors. Again, like I told, mentors who are senior people who have navigated through the career transformations multiple times in their career and help each other. It's like in a nutshell, it's like a lot of things together for your upskilling, for AI, for your tech skills. You get access to community, you get access to mentors, you get to work on live projects, and we're now trying to do something called as offline catch-up solve. For example, a dedicated breakfast for, let's say, a Delhi-based finance circle members, a special breakfast for, let's say, Pune-based finance circle. So the evolving the relationship just beyond online walls, probably go offline also and make people connect with each other. That's how it is. So it's right. designed for outcomes. We have just figured out that we need to give outcomes to people. अगर लोग अपस्किल में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो उनको उसका आउटकम आना चाहिए. So it's designed for outcomes. Got it. So that's great. Like copy. It's a good initiative. Like for the someone like who is seeking mentorship, who is seeking guidance into the testing community, and it's a good way to connect with people like-minded people or someone they aspire. Generally क्या होता है कि
आपको पता होता है कि यार ठीक है मैं इनसे कनेक्ट कर सकता हूँ, बट आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि कैसे कनेक्ट करूँ, कैसे मैं उनसे बात करूँ, कैसे गाइडेंस सीख करना है तो कैसे उनको रीच आउट कर सकता हूँ. बट Correct. these community kind of platform, like they bring a platform where you can connect with those people, Correct. where you can like take advice from them. So Correct. that's a great initiative. Yeah. So now हम मूव करते हैं हमारा क्विक फायर राउंड. सो कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है? तो Hmm. क्विक आंसर्स देने हैं, एक्सप्लेनेशंस की उतनी नीड नहीं है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि टेस्टिंग में आपको क्या लगता है कि कौन सी सबसे अंडररेटेड स्किल है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता? आई थिंक सबसे अंडररेटेड स्किल्स जिसके बारे में लोग बात नहीं करते और अक्वायर भी नहीं करते इज फोरकास्टिंग एंड रिस्क असेसमेंट. मेरे को ऐसा लगता है कि फोरकास्टिंग बहुत ही टफ स्किल है और बहुत अंडररेटेड स्किल है और बहुत लोग उसको करना भी नहीं चाहते बिकॉज बिकॉज वो फोरकास्टिंग गलत भी हो सकती है किसी की. तो राइट. रिसोर्स एस्टिमेशन टीम एस्टिमेशन लोग करना नहीं चाहते हैं तो गलत हो जाती है. तो एंड इसीलिए वो इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए अंडररेटेड भी है बिकॉज बहुत लोग करना चाहते हैं, इसलिए जो लोग करेंगे उसको दे विल बी फॉर मोर वैल्यू. व्हाट आई थिंक. हम्म. राइट 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 राइट. ओके, सो सेकंड है कि if you could give like one piece of advice to your younger self, so from like perspective of testing, perspective of career, so आपकी क्या होगी वो एक एडवाइस जो आप अपने आप को देना चाहोगे when you are like started your career or you are in your college time? हाँ, तो आई वुड ऑलवेज से टू माय यंगर सेल्फ इफ आई कैन गो बैक एंड से, एंड मैं बहुत इसको स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ दैट इफ यू वांट टू स्टार्ट समथिंग ऑफ योर ओन, स्टार्ट at an early age, which could be about Right. after 4 or 5 years of working, because then it gives you a lot of time to, let's say, experiment, fail, and then succeed. If you, it's not that people who start late can't succeed. There are stories who can succeed, but the odds of succeeding increase. So start early, and if you keep Right. studying, and if you don't, and second is don't break the momentum of study, because एक बार पढ़ने का momentum छूट जाता है ना, तो उसको वापस बिल्ड करना बहुत मुश्किल है. बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली. और इन लाइक अर्ली एज और स्टार्टिंग ऑफ द करियर हमारा रिस्क एपेटाइट भी बहुत हाई होता है. हम फेल होके कितना दोबारा से नई चीज स्टार्ट कर सकते हैं वो बहुत इजी होता है अगर हम कंपेयर करें तो. नाउ टाइम ऑफ द करियर ठीक है यार, मतलब लर्निंग का और कुछ भी स्टार्ट करने का कोई टाइम नहीं होता, बट जब आप उस टाइम करते हो तो आपको लगता नहीं कि इट्स सेटबैक एज ए फेलियर. आपको लगता है ठीक है कुछ सीख लिया, अब कुछ नया कर सकते हैं. सो एग्जैक्टली एक ग्रेट एडवाइस है ये. ठीक है, तो अब क्लोजिंग क्वेश्चन मैं लेना चाहूँगा आपसे कि टेस्ट टाइप में क्या कोई ऐसी कोई एक्साइटेड अनाउंसमेंट्स या कुछ भी चीज़ें मतलब जो आप हमारे व्यूअर्स के लिए बोलना चाहोगे? ऐसी लिंक्डइन पोस्ट की कुछ आप आजकल पोस्ट कर रहे हो कि कुछ कमिंग अप है, सो एनीथिंग लाइक यू वांट टू गिव अस टू आवर व्यूअर्स लाइक how it will be like into 2025, not like what's coming in January or something like in the like coming month, but इस in perspective हो कि 2025 में हम क्या expect कर सकते हैं, how how like something around like TribeCon for कुछ भी जो कि हम मतलब टेस्ट टाइप से हम expect कर रहे हैं कि 2025 में कुछ हम नया देख सकते हैं. करेक्ट. यार एक स्टार्टअप की जर्नी में ना 1 ईयर बहुत ठीक ठाक टाइम हो जाता है, तो 1 ईयर का प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल है. ठीक है, तो आई थिंक वी विल सी एन अनाउंसमेंट इन जनवरी which for which we are working from quite some time, and I think that it will be helpful for testers, especially from India first and then probably all over the world. So this will come in January, the second week of January, hopefully. अगर प्रेप हो जाए तो वरना काउंटडाउन को फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, हो सकता है. The second thing is our conference for future of testing वाला conference जो है, that will undergo a massive change this year, and we'll start to see what we do again from January itself. For TribeCon तो होगा, we want to do it bigger, and TribeCon is something यार जिसको हम लोग साल भर look forward to करते हैं. वो बहुत challenging है because getting 600 people in the room by asking them money, which is also a good amount of money, is a great challenge. But जब हम इतने लोग एक रूम में देखते हैं और जब उस हॉल में देखते हैं तो whatever is the hard work which you have done over months, it just pays off. And the kind of feedback which people give there is like it makes it all worth it. इस बार हम लोग
आज अगर कॉन्फ्रेंस सुबह 9 बजे है तो 40 घंटे पहले सो ही नहीं पाए थे बिकॉज ऑफ वो ब्रांडिंग का सामान नहीं आया। बट व्हेन यू सी सो मेनी पीपल कमिंग एंड एनर्जी से वो लोग आते हैं तो आप उस एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, यू जस्ट carry forward for your the entire day. Yes. So I think 2 announcements will come, and one is a bigger thing. बाकी तो सर बहुत लंबा जर्नी है यार टेस्ट ड्राइव। Yeah, right. So thank you आशुतोष, like it's been like very lovely. काफ़ी इंसाइट्स मिले आपसे टेस्टिंग के पर्सपेक्टिव में, being a part of like a community what you are building for the testing, so it's very commendable. So thank you for being here. Thank you very much. And I always say to people that if you are in your comfort zone, go speak to Manish Saini. He is someone who has come out of his comfort zone. और वो ऐसा comfort zone था ना जिससे कोई बहुत कम लोग बाहर आते हैं, हमारा वाला वो। Right. So I think if you want to come out of your comfort zone, he is the guy to speak to. Yeah. Thanks. Thank you Ashutosh, like it's very humble. So ठीक है यार, मतलब सच ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ फोड़ा है, बट हाँ कंफर्ट जोन तो था कि मतलब आप स्टक हो जाते हो एक जगह पे और फिर कैसे नेविगेट करना, सेम चीज़ है। मतलब मेंटरशिप वहाँ पे हमने जो चीज़ें, तभी हम अब आज के टाइम पे मतलब मेंटर की एक वैल्यू समझ पाते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हमने की है और उस टाइम पे कोई प्रोबेबली कोई मेंटर होता फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ आवर करियर, तो हम ज़्यादा जल्दी इन चीज़ों को में भी अचीव कर सकते थे। हमने गिर पड़ के सीखा है, बट जरूरी नहीं है सबको गिरने की जरूरत है। दे कैन लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। दैट्स ट्रू। एंड मतलब नई मिस्टेक्स करनी चाहिए ना हर किसी। तो तुम्हारी मिस्टेक्स को मैंने करूँ, मेरी मिस्टेक्स को तुम ना करो, वी डू डिफरेंट मिस्टेक्स। बिल्कुल एग्जैक्टली। सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर।